So here we will discuss how to find the rank of the matrix. I have already sent you, the one page for what is rank of the matrix. The definition of the rank of the matrix is a positive integer R is said to be the rank of a non-zero matrix that is written row A is equal to R if there exists at least one minor in A of the order R which is not zero. Every minor in A of the order greater than R is zero. So rank of a zero matrix is defined to be zero. If matrix is zero, then we can say that is in a zero matrix. Here, how to find the rank? I have explained that. आप उसको एक दो बार पढ़ेंगे, definition से clear नहीं होगा, लेकिन जब हम question करेंगे, then you will get 1001. I got the value 2, right? इसकी रैंक 2 है, इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है. अब आप कहेंगे कैसे मैट्रिक्स की रैंक 2 है? तो वी फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस 1 0 0 1, that is 1 1 1 minus 0, that is 1, that is not equal to 0. So our determinant is not 0 and it is a 2 by 2 matrix. It is rank is 2. Similarly, इसको हम I2 से भी डिनोट करते हैं. It is an identity matrix. It is an I2. Now I3 will be what? It is an identity matrix for 3 by 3 matrix, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. It is an I3 matrix. The rank of this matrix will be 3. It is in a 3 by 3 matrix. So the rank of this matrix is 3. रैंक का मतलब होता है कि रो कितनी है इसमें. देखो 1 2. इफ थर्ड रो इज 0 0 0 तो हम इसकी 2 ही रैंक बोलते हैं, लेकिन थर्ड पे एक वैल्यू आई हुई है 1. देयर आर 3 रोज, सो वी से दैट द रैंक इज 3. Now, one more example I am trying to give you. If a matrix A is equal to this 1 2 minus 2 2 1 2 5 2 and 6. You see, question says, tell me the rank of the matrix. Tell me the rank of the matrix. कोई बता सकता है इसकी rank of the matrix क्या होगी? Anybody can tell me what will be the rank of this matrix? मुझे इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ. Determinant A, please tell me. Please tell me what is the determinant of A for this 3 by 3 matrix. Mr. Mohit Rohela, Arbaz Khan and Syed Waqas. Please tell me what will be the rank of this determinant of this. Then I will tell you what is the rank of this. Tell me. Okay, sir. Within 2 or 3 minutes, tell me what will be the determinant of this. Zero, exactly, you are right. If we find the determinant of the 3 by 3 matrix, we got determinant 0. Now you have to find out the determinant of any 2 by 2 matrix. We have considered 2 minus 2 1 2. Suppose we have taken these values. We have taken these values only.
try to find what will be the determinant of this. 6. 6. That is not equal to 0. 6. That is not equal to 0. And please try to find out the value of this. 2152. Tell me what is the determinant of this. Sir, Minus -1. -1. 2152 minus 1. It means that is also not equal to 0. Yes, it means rank of this matrix will be 2, not 3, because determinant of the 3 by 3 matrix is 0. So we try to find out the determinant of 2 by 2. We considering just like this. We can take also these values and we can take also these values in a single time. 2 by 2 matrix. We have taken this from this 3 by 3 matrix. So we say the rank of A is 2. It is clear? ये तभी करना है सर जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो, तभी करना है या उससे पहले करना यस सर, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो आप इसका 2 by 2 चेक करके आपसे तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द रैंक ऑफ दिस, राइट? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आती है, आगे भी बताएंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है? तब आपको समझ आएगा, उसमें ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमें रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा. Just see one more example also. You see that I have written it is in a 4 by 4 matrix, 1 1 1 1, and it is 1 1 minus 1 and 1, and here it is 1 1 1 and 1. You see that it is in a 4 by 4 matrix. Please find the determinant of 4 by A. 3 no, What are you saying? 4 by 3 ना सर, 4 by 4 नहीं होना ये. It is 4 by 4. There are नहीं. हाँ, 4 by 3 matrix है ना, 4 by 3 matrix. You are right. It is in a 4 by 3 matrix. You are right. So please find out the rank of this matrix. Please open with the first row, expanding it along first row. Tell me what will be the determinant of this. Find the determinant of this 4 by 3 matrix. Anybody? नहीं से क्लियर नहीं है 4 by 3 का निकालना. You are right. You are right. देखो क्या है, अब इसके अंदर हम अगर 3 by 3 पार्ट्स को अलग अलग कर दें, नो प्रॉब्लम. देखो मैंने इसका एक 3 by 3 पोर्शन चूज किया. Take this matrix. Find out the determinant of this. It is the part of 4 by 3 matrix. Hello. 1 1 1 1 1 minus 1 1 1 and 1. Find out the determinant of this. Tell me. Zero. Yes, you are right. It means 3 by 3 मैट्रिक्स पे 0 आ रहे हैं डिटरमिनेंट. अब कोई सा भी 2 by 2 मैट्रिक्स पकड़िए. Just we have taken -1 1 1
and 1. We have taken this. Please ये tell तो me. जीरो ही आएगा सर, Hello? तो जीरो ही आएगा सब में। No, I have not taken the, it is 3 by 3. We have taken 2 by 2. Find the determinant of this. -2 What? -2 -2. Yes. It is not 0. So you know the rank of the matrix will be what? 2. At the 2 by 2 matrix, the determinant is not equal to 0. So the rank of the matrix will be 2. It is the basic concept of this. If anybody say that कि find the rank of the matrix, ऐसे ही आपको दे दिया गया कोई सा भी 4 by 3, 3 by 3, तो उसका 3 by 3 चूज कर लो और उसको सोल्व करो, कोई से भी 3 by 3, जैसे कि we have taken here. सर स्टार्टिंग से बताइए, अगर कोई भी 2 by 2 है पहले, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालना है। देन डिटरमिनेंट अगर 0 अगर वो नहीं है, 0 है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है, जिस केस में if we have given a 3 by 3 matrix and you find out the 3 by 3 नहीं सर 2 by matrix, 2 से पहले 2 by 2 से बताइए कि अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 है तो क्या करना है, और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो कैसे करना है। 2 by 2 मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट लिया आपने, अगर वो 0 नहीं है तो रैंक उसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। ओके और अगर 3 by 3 मैट्रिक्स है, उसका आपने डिटरमिनेंट लिया और 3 by 3 मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 आ रहे हैं, तो उसी डिटरमिनेंट्स में से कोई से 4 पॉइंट्स लो नियर वाले, समझ रहे ना, जस्ट लाइक यूं ऐसे 4 पकड़ लो या ऐसे 4 पकड़ लो या यूं 4 पकड़ लो, राइट, ये वाले या इधर वाले 4 पकड़ लो, फिर देखो कि 2 by 2 मैट्रिक्स उसका क्या आ रहा है, अगर वो 0 नहीं आ रहा, इट मींस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 2. Similarly, it is in a 4 by 3 matrix. You have to take 3 by 3 matrix. बाहर निकाल लो, 4 वाला निकालना नहीं आ रहा है तो 3 by 3 निकाल के उसको सॉल्व कर लो, अगर उसकी रैंक 0 जा रही है तो 2 by 2 चूज करो, फिर 2 by 2 पे अगर वो 0 नहीं आया तो हम बोल देंगे रैंक 2 है. It is clear? It is the way to find the rank of the matrix. अब आते हैं बड़े क्वेश्चनों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन से कैसे निकालते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. ये रैंक निकालने का डायरेक्टली तरीका बताया. अब हम रैंक कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, जो अभी हमने अप्लाई किया था वहां, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, राइट. तो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. A is, it is in a matrix, so we write this in this form. We can write this symbol, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का यूं बना लो, और हमने आपको ये 1 1 1 and 1 3 4 5 2 2 3 4 0. It is our question, and question says that find the rank of the matrix. Question says find the rank of the matrix. So how to find the rank of this matrix? So we will apply row and column matrix, and our target is that कि क्या हम इस पोर्शन को 0 0 कर पा रहे हैं. Which portion? You see that if the value of the third row becomes 0, means all value becomes 0, तो हम बोल देंगे कि 2 ही रो में वैल्यू बची है कुछ ना कुछ, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी. अगर हमने इसको पूरी कोशिश कर ली सारी वैल्यू 0 करने की, फिर भी नहीं हो पाई, और वो 1 1 1 1, हमारा टारगेट होगा कि उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में बना दें उसको, नॉर्मल फॉर्म में. हमारा टारगेट क्या होगा उसको,
इस फॉर्म में बनाना है क्वेश्चन को। देख लो, क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करना है इस तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से हमने वैल्यू करनी है। और इधर कुछ भी हो जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो you can see that it is an identity matrix I3. If this problem will change by doing the row or column matrix, so we say that rank of this matrix is 3. ये रैंक हमारी 3 कहलाती है। अगर ये इस फॉर्म में न रह के छोटा रह जाएगा तब हम रैंक बोलेंगे कि 2 है। सपोज ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो मैंने लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां पर कोई भी वैल्यू आ जाए 0 0 आ जाए तो हम बोलेंगे रैंक 3 है। सपोज दैट अगर ये ना आके ये आ गया, यहाँ पे 0 होगी वैल्यू, इस 1 की बजाय 0 होगी। यू सी दैट इन द फर्स्ट रो 1 0 0 0 एंड 0 1 0 आ रहे हैं, लास्ट में 0 है, देन वी विल से दैट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो रैंक 2 होगी या रैंक 3 होगी, मोस्ट प्रोबेबली 3 या 2 में से ही कोई रैंक होगी। अगर क्वेश्चन 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो द रैंक विल बी 3, वी विल राइट दैट द रैंक इज 3। और क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कि ये जो रिसेंटली आपको दिख रहे हैं कि थर्ड रो बिकेम फुल्ली 0, देन वी से दैट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 2। यही करना है हमारा मेन एम, ये होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करने के लिए क्या कैलकुलेशन करनी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करके दिखाया था, और हम कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, रो ऑपरेशन, जो आपको सही लगे। बस हमारा टारगेट है यही करने का। मैं आपको एक इसी क्वेश्चन का सलूशन भेज रहा हूं, यू कैन सी दैट। Just wait for 1 minute. I'm sending you the solution of that. Please check. I have sent the solution for this. All of you see that in the first line we have taken the column operation C2 minus C1, C2 minus C3 minus C1, C4 minus C1, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा दिया। क्यों करा? देखिए हमने अप्लाई किया पहला ऑपरेशन, क्या अप्लाई किया? C2। देखिए जी, इसको हम बोलते हैं कॉलम 1 C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3 और इसको बोलते हैं C4, इसको बोलते हैं R1, R2 एंड R3। अब हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा रहे हैं तो C2 माइनस C1 हो जाएगा। C3 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इस 1 में से ये वाला 1 घटाऊंगा तो मैं यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें 1 में 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा टारगेट रहता है कि C3 माइनस भी C1 कर दिया और C4 माइनस भी C1 कर दिया। इस तरीके से हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यू सिंबल लगाने के बाद हम इसमें यूं लिख देंगे। तो इस तरीके से हम सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर देंगे जो हमने भेजे हुए हैं आपको। फिर R1 ले लिया और फाइनली हम
1000001000010 पे पहुंच जाएंगे और इस क्वेश्चन की रैंक 3 होगी। यही तरीका है हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और मैं इसका आपको सिलेबस और नोट्स, सिलेबस तो ऑलरेडी भेज रखा है, नोट्स भेज दूंगा मैं। मोहित, रोहेला एंड अरबाज खान, समझ आया बेटा आप लोगों को? जी सर। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर, स्टार्टिंग में जो मेरा छूट गया था। कर देंगे। आई एम गोइंग टू फिनिश द क्लास। I am going to finish the class. Okay, Our unit 2 became complete. Okay. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू।